Namaskar. Very good afternoon to all of you, respected Durga Prasad sir, respected faculty members and dear students. In the very beginning, I would like to congratulate all of you for getting admission into this prestigious management school, and I am sure that with the bright and dynamic faculty here, you will be able to derive maximum benefit out of this learning experience of 2 years which you will be spending here. Friends, today I am not going to share anything specific about oil and gas industry to which I belong, but I would like to share certain general things out of my own experience and also whatever I have learned from other inspiring personalities. So that's why I have titled my presentation as Lessons to Learn and Put into Practice. See, now are there only freshers or some second year students as well here? Mixed? Okay, so I would request the students who are from HR, please raise their hands. 1, 2, 3, 4, maybe 5. So the first learning is that everybody sitting in this room is HR. Nobody is non-HR. Reason I will tell you, because the moment we are born on this earth, we take birth as human beings. We deal with human beings. After our birth, our first interaction is with our mother, then father and other family members. We go to the school, we have our teachers, we have our classmates and so on. So, I mean, we cannot even imagine to exist without interaction with human beings. So therefore, irrespective of the profession, whether it is a doctor's profession, lawyer's profession, or businessman's business, anything, the essence is everybody is human being, and it is through human beings only that we can achieve something. So the first takeaway from today's session is that nobody is non-HR. Do you agree or not? Yes, sir. Okay. Thanks for that, and I hope you will keep this in mind, because now I don't talk in terms of मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. आप सिंपल चीज़ ले लीजिए. आपके घर में काम वाली आती है, आपकी मम्मी या आपके दूसरे दादी या कोई भी उनसे काम जब करवाते हैं, उनके बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता. अगर आप उसको प्यार से बोलेंगे तो 2 काम ज़्यादा कर देगी, और डांट के बोलेंगे तो 3 दिन छुट्टी ले लेगी, बर्तन खुद को मांजना पड़ेगा, है कि नहीं? So this is exactly what is applicable in any field you are working. Even if Dr. Trehan, who is the renowned cardiologist of this country, if he doesn't behave properly with his staff, who will stay with him? Who will assist him? So that is a thing to remember. So then now world is becoming complex day by day. There are a lot of changes in the environment, so many complications, and no business can exist in vacuum. Whether it is, as an organization, this Jayapura Institute also is working in certain environment. There are rules and regulations and AICTE approval and UGC recognition and so on and so forth. There are different stakeholders. There are aspirations of the students, aspirations of the governing body. So the point is that everywhere, anybody working in any profession has to work in a certain given environment, and the better we adjust and adopt with the environment, better it is for us in the interest of our growth and progress. Next please. So just to give you an idea of how any organization is functioning is captured in this slide. You can see that there are different circles,
and you can see that any business entity or any organization has certain characteristics external to it. It has a social environment, it has political environment, it has legal environment, it has economic environment. Like oil prices, at one point of time it was more than $110 per barrel. Now it has come down and it has affected the whole business, the economy of the whole world per se. So any organization is not a set of physical assets. It is like an organic entity. So therefore, there has to be a strong linkage with the external environment, which is shown in the outer circle you are seeing on the screen. Then the second wheel talks of the vision. Vision is nothing but what you want to be, your dream, your desire. And unless there is a vision, the road will not lead you to anywhere. भटकने वाली बात हो जाएगी. You have certain vision, or your parents had certain vision, because of which you have come to this B school. Otherwise, there are many people who don't have any vision, they don't have any goal. So they go into different streams. कोई रिक्शा वाला भी आपको सड़क पे मिलेगा, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई चाट की दुकान लगा के. तो जिसका जैसा विजन है वो वैसा बन जाता है. So therefore there is a need for a strong vision, and merely having vision will not make it a reality. So after having consolidated the concepts and having arrived at a certain vision, there is a need to put it into practice. Like you are here, your parents must be having some vision in their mind. Okay, my child will become a commerce graduate or engineering graduate or science graduate. Thereafter we will plan for his MBA and so on. And thereafter you also take that course of action. Otherwise, merely by thinking you can't become. You have to do a lot of hard work, you have to study, you have to perform, you have to deliver. Then only you are able to implement, and implementation is nothing but through a planned action or the strategy. In terms of business jargon or management jargon, we call implementation plan as strategy. Now strategy issue is an issue which is very, very dynamic. It is not that today we sit in a boardroom and we consider the environment, take certain course of action and decide to go by it. Maybe we don't know. The environment itself is dynamic. So what will happen tomorrow? If we can't sit by taking today's plan. Okay, this is what I have planned for my business and I will keep following it. Then probably I will be finished. We will no longer exist in the business. So therefore, vision followed by a strong and dynamic, flexible strategy. And then you are seeing the fourth wheel. The fourth wheel says that while vision and strategy is fine, but we have to gauge ourselves against the best. That is called benchmarking. अगर मैं समझ लूँ कि मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ या मैं बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मैं ठीक है अपने मन में खुश हो रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को तौलना पड़ेगा कि मैं जो बेस्ट है, ग्लोबल बेस्ट है, उसके कंपैरिजन में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. So that is called the process of benchmarking, and based on benchmarking we have to revisit our systems, our processes, our plans. That is, and therefore worldwide the organizations are continuously revisiting such things, changing the organizational design also. So that is called बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग. आज आपको पहले दिन में आपको वो कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ जो आपके टीचर्स आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बताएंगे, और हो सकता है बहुत से लोग आप ये चीज़ें पढ़ के भी आए हों. लेकिन मैं जो आज बोल रहा हूँ, शायद 30 साल पहले मुझे इन शब्दों का मीनिंग नहीं पता था. मैं खाली किताब में देखता था कि ये क्या वर्ड्स हैं. लेकिन नाउ वी हैव टू लिव विथ डे इन एंड डे आउट. प्लान आपका
बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, रचना मैम से मेरी काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, इनवाइट किया था, मैंने एक्सेप्ट भी किया था। अब कल इवनिंग में मुझे अचानक एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग आ गई। उन्होंने कहा साहब चेयरमैन हैज कॉल्ड फॉर ए मीटिंग एट 11 o'clock। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू मेक ए कॉल टू रचना मैम, बिकॉज भाई आप तो अपना कुछ भी करेंगे लेकिन आपसे इंटरलिंक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। शी हैज़ मेड सर्टन प्लान। मैं अचानक लास्ट मोमेंट में कहूँ कि आज मैं नहीं आ पा रहा, हर प्लान विल गो हेवायर। शी हैज़ टू टेक सम अल्टरनेट, प्लान ए प्लान बी वाली जो हम बात करते हैं ना, तो हो सकता है उन्होंने प्लान ए तो ये बनाया, प्लान बी कुछ सोचा होगा। तो लाइफ में चाहे आप फाइनेंस के हो, मार्केटिंग के हो, HR के हो, एक तो कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करिए, इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी शार्पन कंटिन्यूसली होते रहने चाहिए, एंड बी ऑनेस्ट। जो है आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि सच बोलने से मेरा अभी टेम्परेरी नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग रन में मैं आपको बता रहा हूँ इससे बहुत फ़ायदा होता है। अभी मैं स्टूडेंट्स के बीच में हूँ, इसलिए मुझे अपने इंस्टीट्यूट का दिन याद आ गया। आई वॉज स्टडिंग इन IIT बॉम्बे। आवर क्लासेस यूज्ड टू स्टार्ट एट 8:30 in the morning, and there were certain subjects for which lectures were not there every day. It was twice a week. And I also appreciate, the teachers also are very sensitive. आप लोग ये मत समझिए कि इतना बड़ा बैच है या छोटा बैच है, टीचर्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत प्यार करते हैं स्टूडेंट्स को। एक मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, आजकल की जो जनरेशन है बहुत लूज कमेंट भी करते हैं। अरे वो फलाना तो फालतू है, उसको कुछ नहीं आता। अरे भाई आप जरा खड़े होके देखिए, जरा 2 शब्द यहाँ से बोल के देखिए कि बोलने के समय कैसे दुखी होती है। एनीवे, तो जो मैं घटना याद कर रहा हूँ, so our classes used to start at 8:30. So it just happened that I was so much involved in playing TT that I was playing table tennis till 4 o'clock in the morning. So with the result that I couldn't get up early in the morning and I missed that class. Next week, when the turn of that professor came, he asked me, Deepak, I didn't see you during the last lecture. And believe me, spontaneous and natural answer came from my mouth. Sir, I was playing TT till 4 a.m. in the hostel, so I couldn't get up. Professor started laughing. He said, oh, I just love it. I have never heard this kind of answer from any of my students in my life. So true, so innocent answer. Okay, Deepak, take care. इतनी देर तक मत खेला करो, टाइम पे सो जाया करो। बात खत्म हो गई। नॉर्मली क्या होता है, आप मिस करोगे, बहाना बनाओगे, सर सिर दुख रहा था, मुझे तो फीवर था, ये था वो था। तो क्या प्रोफेसर कोई बेवकूफ़ थोड़ी होता है, वो भी तो किसी समय स्टूडेंट था ना, सास भी तो कभी बहू होती थी ना। तो इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस चीज़ को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया और उसको यूज़ किया है। और आपकी कोई भी फीलिंग जब आप एक्सपीरियंस से रीइंफोर्स होती है, अगर आपको लगता है कि सच बोलने से अच्छा रहा, और अपना अपना टेम्परामेंट है। अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे तो साउंड स्लीप इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर मी, तो दिन में मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसके वजह से मुझे रात में नींद ना आए। आप स्पष्ट बोलिए बॉस से भी, बट अगेन फर्मनेस इज नेसेसरी विथ पोलाइटनेस। बात आप क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने एक्टिव सर्विस में जाएंगे, चाहे खुद का बिजनेस हो चाहे सर्विस हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज सेड, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हाउ इट इज़ सेड। सो वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। फिर स्कूल की घटना याद आ गई सब। मैडम हमारी एक थी, PT टीचर थी स्कूल में, और जैसे कि होता है कि साहब ये चेयर यहाँ से उठा लो, वहाँ से उठा लो। भाई आपके वहाँ कोई हर जगह प्यून तो नहीं होता, या प्यून होगा भी तो कहीं दूसरे काम में बिजी होगा। तो वो मैडम कई बार मुझे कह देती थी, बेटा ये चेयर यहाँ से यहाँ रख दो। अब आप देखो मिक्स ग्रुप होता है, सब तरह के स्टूडेंट भी होते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा, बोले यार तू तो क्या कुर्सी उठाने के लिए, तू क्या यहाँ का चपरासी है? तो एक आध बार तो मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा भाई नहीं, मेरी वैल्यू सिस्टम है कि मेरे टीचर ने जो कहा आई मस्ट अबाइड बाई इट।
लेकिन जब बार बार कहा तो अब भाई मैं भी तो बच्चा ही था उस समय, मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था। बार बार जब वो चीज़ कहने लगे तो एक दिन मैंने कह दिया, जब अगली बार उन्होंने कहा कि कुर्सी उठा के रख दो, तो मैंने कहा मैडम कुर्सी उठाने के लिए प्यून है, हम स्कूल की फीस देते हैं। तो मैडम तो समझ गई, जानती थी कि बच्चा कैसा है, इसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो मैडम ने मुझे सिर्फ एक बात कही, बोले मैं आपके फादर से मिलूंगी, बस इतना सेंटेंस उन्होंने कहा। मैंने कहा मैडम माफ़ कर दीजिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन फादर से मत मिलिएगा इस मुद्दे के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी वैल्यू सिस्टम खुद डिसाइड करनी है। आजकल तो कई माँ बाप भी होते हैं, वो लड़ने पहुंच जाते हैं, वो कहेंगे हाँ मेरा लड़के ने कुछ गलत थोड़ी बोला, ये लड़के को मैंने पढ़ने भेजा है, कुर्सी उठाने के लिए थोड़ी भेजा है। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्पिरिट, भाई सेवा की भावना। गुरुद्वारे में आपने देखा होगा बड़े बड़े मिलीनियर्स जाके वहाँ पे सेवा करते हैं, जूतों की पॉलिश करते हैं। सो सेवा, द सर्विस टू द मैनकाइंड इज द स्पिरिट, और हमको किसी भी काम करने में शर्माना नहीं चाहिए था। अब मैडम ने अगर कहा, अगर इसी चीज़ को हम आगे एनालाइज करें, वट एवर शी टोल्ड मी इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्क एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई 15 मिनट तक वो ट्यून नहीं आएगा तो चीज़ें स्टैंड स्टिल रहेंगी। बट यस, इफ शी uses me for doing that job only, then perhaps there may be a case for making an objection. But if it is in the natural course of work, if something is required to be done which otherwise we are not supposed to do as a matter of routine, there is no harm in it. डॉक्टर कलाम के बारे में आजकल बहुत न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। आपने सुना होगा कि वहाँ पे बेंगलोर में किसी ने उनको एक वो ग्राइंडर प्रेजेंट किया, गिफ्ट किया। तो कलाम साहब ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने चेक भेज दिया। ये सुना है किसी ने, किस्सा पढ़ा है? हाँ, हाथ उठाइए जिन्होंने पढ़ा हो। आपने? अरे मतलब यंगस्टर्स ने पढ़ा ही नहीं। अरे आजकल इतना फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जाने क्या क्या है, आप लोग क्या पढ़ते हो? अच्छी चीज नहीं पढ़ते हो। व्हाट्सएप में भी बहुत ज्ञान मिलता है। फालतू के मैसेज को छोड़ के आप वही सार को वही रहे, सार को ग्रहण कीजिए। दुनिया में तो अच्छा भी है बुरा भी है, आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। एनीवे, तो कलाम साहब ने बाद में उनको एक चेक भेज दिया, शायद 5,000 रुपया या जो भी वैल्यू रही होगी। तो जो बिजनेसमैन था उसने उस चेक को एक बड़ा प्रेस्टीज के रूप में लिया। उसने कहा मैं तो इसको लाइफ टाइम तक संभाल के रखूंगा, मड़वा के रखूंगा। लेकिन आप कलाम साहब तो कलाम साहब थे ना, उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया और पाया कि वो 2 महीने तक भी चेक इनकैश नहीं हुआ था। तो देन ही सेंट ए रिमाइंडर कि साहब आपसे मैंने ग्राइंडर लिया था और मैंने चेक दिया था और आपने चेक बैंक में जमा नहीं किया है, प्लीज आप उसको जमा कीजिए, और नहीं तो मैं आपका आइटम आपको वापस कर रहा हूँ। दीज आर द वैल्यूज विच वन शुड लिव। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को देखा है और खुद एक्सपेरिमेंट भी किया है, इसलिए शायद मैं इस चीज़ को आपके साथ इतनी सहजता से और ऑथेंटिकली कह पा रहा हूँ। Anyway, so let's come back to the organizational context. Nowadays, yet another management jargon is prevalent. I don't know whether students are aware or not, but those who are in this faculty and others, they know VUCA. VUCA is nothing but volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Maybe there can be pages and pages which can be written on it, but the crux of the matter is that complexities are increasing day by day. एडमिशन की बात आप ले लो, जब मैं 11th क्लास हमारे यहाँ होती थी, उसके बाद 5 साल का इंजीनियरिंग होता था। उस टाइम पे ये था कि जो आपकी मेरिट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाता था। उसके बाद आपका प्री इंजीनियरिंग टेस्ट आ गया, प्री मेडिकल टेस्ट आ गया। तो अगर कोई चीज़ उसी को लेके बैठा रहे कि साहब हाँ साहब मेरे तो 80% मार्क आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आजकल तो 95+ में भी कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, फिर आप कैट के थ्रू आते हैं, कैट में भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है।
तो कहने का मतलब है कि जो कल रिलेवेंट था वो आज नहीं है, और जो आज रिलेवेंट है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए वही व्यक्ति सक्सेसफुल है जो बदलती हुई परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब आप ये सोच लें कि मैं तो अपने प्रीवियस स्कूल में मेरा तो ऐसा बिहेवियर था, आज आप वैसा नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे तो फिर भरेंगे। अभी मैं सर से बात कर रहा था कि सुखद से दुखद से न कोपी दाता, सुख और दुख का कोई दाता नहीं होता। अहम करोमि इति वृथा अभिमाना, मैं खुद करता हूँ ये व्यर्थ अभिमान है। बट व्हाट इज द एसेंस? स्वकर्म सूत्रैर ग्रथितो हि लोकः, आपके कर्म से ही आप सुखी या दुखी होते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ कर्मा। एंड अगेन आई वाज टॉकिंग टू हिम दैट भगवद गीता एंड अदर स्क्रिप्चर्स आर नॉट द वंस which are to be read at the age of 60, but those are the books which must be read and absorbed into one's mind when we are still young. Maybe at the age of 6 or 7 years one must start. Again I am saying this thing from my experience, और सुन के शायद आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं जब 5वीं क्लास में था तो मेरे फादर ने मुझे भगवद गीता की बुक दी, और उन्होंने, देखिए ह्यूमन बीइंग ऐसी चीज़ है, उसको अगर आप लॉजिक दोगे तो वो बाय करेगा, और लॉजिक नहीं होगा तो रिलक्टेंटली करेगा, डर से करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक नोटबुक ला के दी। उसमें पहले तो उन्होंने लिखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। उन्होंने कहा ये आप ले लो, इसको सिंपली कॉपी करो। उसमें क्या था कि स्पिरिचुअलिटी का वातावरण बनाना, अक्षर सुधारना। मेरे अक्षर अच्छे नहीं थे, बोले तुम इसको लिखो, एक श्लोक लिखो, write original Sanskrit text, write the meaning of each word and then write the consolidated meaning। और भी बहुत से 10 पॉइंट लिखे थे। वो नोटबुक आज भी मेरे पास है, 1969 की थी वो। एनीवे, बट उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने फॉलो किया, एक श्लोक लिखता था एटसेट्रा। तो धीरे धीरे एक, अच्छा दूसरी चीज़, आजकल मैगी वाले स्टाइल में हम लोग सब चाहते हैं। मैगी इसीलिए आउटडेटेड हो गई, हम इंस्टेंट चाहते हैं। आज ये हुआ, कल ये होना चाहिए। आज मैंने नौकरी ज्वाइन की, कल मेरे पास कार होना चाहिए, परसों फ्लैट होना चाहिए, नर्सों वो होना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क। अगर इंस्टेंट सक्सेस मिल भी जाती है, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। जैसा मैगी के साथ हुआ, मैगी 2 मिनट्स खूब बिका, एक वन फाइन मॉर्निंग उसकी हवा निकल गई। तो मैगी स्टाइल का लाइफस्टाइल हमको नहीं अपनाना है। एनीवे, तो वो लिखा करा। 1 साल के बाद कुछ हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हुई। उसके बाद उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन ला के दी। बोले नाउ यू मेक 3 कॉलम्स, संस्कृत वर्ड, इट्स मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश इक्विवेलेंट। वो भी फॉलो किया। तो उससे क्या हुआ कि जो कुछ सब्जेक्ट मैटर तो जो माइंड में जाना था गया, लेकिन अनायास ही, एफर्टलेसली संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश भाषाओं पर रीजनेबल कमांड हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि कमांड हो गया, लेकिन हाँ, अगर मैं दूसरों से कंपेयर करूँ तो उनसे तो बेहतर ही हो गया। और उसका फ़ायदा किसका हुआ? पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए। उस समय शुरू में बुरा भी लगता था कि ये बाकी बच्चे तो फुटबॉल खेल रहे हैं गर्मी की छुट्टी में। मतलब वो ये भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखते थे। जब रेगुलर स्कूल का टाइम है तब नहीं, 2 महीने उस समय छुट्टी हुआ करती थी। तो बोले उस टाइम को तुम आधा घंटा दो, बोले तुमको 1 श्लोक लिखना है, ये सब करना है, आधे घंटे से ज़्यादा लगना नहीं है। अच्छा, आप बच्चे की आप साइकोलॉजी देखो, रिलक्टेंस तो होता ही है, यू नो, देयर इज ऑलवेज ए रेजिस्टेंस टू चेंज, दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर। रिलक्टेंटली किया। फिर एक आध दिन माँ ने भी कहा फादर से कि क्यों बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हो। तो उन्होंने फिर माँ को डांटा, बोले तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और कोई मैं ऐसा प्रेशराइज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी बाप हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चे के माइंड पे कितना प्रेशर होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। अगेन फिर मैनेजमेंट इक्विवेलेंस में हम आ जाते हैं। एक बड़ी अच्छी किताब है, द 5th डिसिप्लिन बाय पीटर सेंगे। आई डोंट नो, द मैनेजमेंट फैकल्टी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। It's a very good book, and it talks of creative tension. You know, it's like, you know, rubber band, you know. If you stretch it up to a certain extent, you can stretch it. But if you stretch it beyond a limit, it will